لاہور کے بعد سیالکوٹ میں تجاوزات گرانے کے لیے انتظامیہ کا ایکشن. رہنما نون لیگ خواجہ آصف اور سابق میئر توحید اختر کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 4 منزلہ عمارت گرانے کا کام جاری. سابق میئر کا سیاسی انتقام کا الزام. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ جگہ پارک کے لیے مختص تھی. نقشے کی خلاف ورزی پر تعمیرات کو گرایا گیا. آپریشن کیا گیا. خواجہ محمد آصف عرف سیالکوٹی ٹھگ کے نجائز ہاؤسنگ کالونی کے اندر سرکاری زمینیں چھڑانے کا مختلف شہروں میں آپریشن شروع کیا گیا ہے. یہ اسی آپریشن کا ایک حصہ ہے. قانون نے اپنی اس طاقت کو منوایا ہے کیونکہ نو ون از ابو دی لا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقہ خان کہتی ہیں سیالکوٹ میں خواجہ آصف کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی. آپریشن قبضہ مافیا کے خلاف جاری کارروائی کا حصہ ہے. سیاسی چھتری تلے پنپنے والے قبضہ مافیا کے چہرے بے نقاب ہو گئے. خواجہ آصف پر تنقید کرتے ہوئے کہا سیالکوٹ میں کرپشن کرنے والا آج جیل میں سہولت مانگ رہا ہے. یہ اقتدار میں آئے تو نہروں میں چھلانگیں اور جیل میں ہوں تو سہولتیں مانگتے ہیں. جاری کرنے کے لیے قبضہ گروپ ہے اور وہ قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیے. جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں چلیں گے. آپ اصلاح کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں, انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں. یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں. بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پر توجہ دو, ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو. تو حکومتی بھوپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا. مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں ان کے ساتھیوں کو ڈرایا جا رہا ہے, کھوکھر برادران کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے. نون لیگ کے رہنماؤں کے نام چن چن کر کرپشن کی فہرستوں میں ڈالے جا رہے ہیں. کرپشن کا چورن اب نہیں بکے گا. بزدل سرکاری اہلکار 4 آنے کی نوکری کے لیے حکومت کے اعلی کار بن گئے ہیں. عطا تارڑ کا حکومتی کارروائیوں کے خلاف عدالتوں میں جانے کا اعلان. شہزاد اکبر کے بھائی سرکاری اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں 210 ارب روپے سے زائد ریکوری ہوئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں. سب کا تعلق اللہ کے فضل سے پی ایم ایل این سے ہے. قرم دستگیر صاحب کی فیملی ہے, چودھری تنویر صاحب ہیں, رستو ہیں, دانیال عزیز صاحب, جاوید عتیق صاحب ہیں, سرگنا ہیں, کھوکھر برادران جو ہیں پنڈی کے, جس کے اوپر مریم کو بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اگلوں نے ایڈوانس میں سونے کے تاج پہنائے ہوئے ہیں اور آج ان کو پیٹرنیج ختم ہو گئی ہے. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر سرکاری وسائل کے ناجائز استعمال اور سرکاری زمینوں پر قبضے کی تفصیل سامنے لے آئے. نون لیگ کے 36 رہنماؤں سے 210 ارب روپے کی ریکوری کا دعویٰ. قانون لیگ والوں کی چیخو پکار اور آہوزاری کے پیچھے یہ حقیقت ہے. سیاسی انتقام کا الزام خود کو بچانے کے لیے ہے. سیالکوٹ میں غیر قانونی پلازا گرانے کا کام جاری ہے. نواز شریف نے چھانگا مانگا کی سیاست اور پیسے کی سیاست کو فروغ دیا. سپریم کورٹ نے اسی لیے نواز شریف کے لیے مافیا کا لفظ استعمال کیا. ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان. نیوزی لینڈ کے خلاف بہترین پرفارمنس دکھانے والے محمد حفیظ ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 سیریز سے باہر ہو گئے. چیف سلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں کہ حفیظ کی فارم پر شک نہیں, وہ بایو سیکرو ببل کے لیے دستیاب ہوتے تو ٹیم میں ہوتے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حفیظ کا سوشل میڈیا پر رد عمل. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اچھی پرفارمنس دینے والے پلیئر کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا. شاداب خان, اماد وسیم, فخر زمان اور وہاب ریاض بھی ٹیم سے ڈراپ. آصف علی کی ٹیم میں واپسی. زاہد محمود بھی منتخب ہو گئے. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز 11 فروری سے لاہور میں شروع ہوگی. ملک
में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज करीब। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे कोरोना वैक्सीन लोड करने का अमल जारी। अगले चंद घंटों में यह तैयारा वैक्सीन लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। वैक्सीन की कल ही मुल्क भर में तकसीम कर दी जाएगी। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत WHO से खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठी रही। अपने MNAs को रिश्वत देने के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन से वैक्सीन नहीं खरीदी जो रियायती निर्ख पर मिल सकती थी। कहा जिन मुल्कों को अवाम का ख्याल था उन्होंने बर्वक्त ऑर्डर किया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। उम्मीद है कि बुध से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। 1600 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 33,200 के करीब है। वज़ीर आला सिंध कराची को अपना नहीं समझते, कराची को हम अपना समझते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। वफाक और सिंध में काम करने की कोशिश करता है तो रोड़े अटकाए जाते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची के शाह फैसल कॉलोनी में खिताब। वज़ीर आज़म कहते हैं, महंगाई कम करने की कोशिशें नतीजा खेज हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इख्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इख्तिदार में आने के वक्त से कम है। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में यकदम 50 रुपए फी किलो का इजाफा। भिंडी की फी किलो कीमतें भी 50 रुपए बढ़ गई। 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में सब्जी की कीमत वापस मामूल पर आने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। लाहौर में 200 रुपए से ऊपर तक बिकने वाला टमाटर 45 रुपए पर आ गया। 80 रुपए तक बिकने वाला आलू अब 28 रुपए किलो में दस्तयाब। लीमू 270 से 70 रुपए पर आ गया। शहरियों को दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का इंतजार। बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, सेहत, तालीम, दरख्त, ज़राअत, कोरोना, हर शोबे में करप्शन की मंडी लगी है। मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब ने करप्शन इंडेक्स 117 से 124 पर पहुंचने का अभी तक जवाब नहीं दिया। इमरान खान खुद NRO की वजह से यहां मौजूद है। मेरा चोर जिंदाबाद, आपका चोर मुर्दाबाद। ऐसे निजाम को नहीं मानता। नैब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में जलसा आम से खिताब। कहा, आज पंजाब में कहीं भी तब्दीली नहीं। लोग चाहते थे कारखाने बने, इन्होंने लंगर खाने बना दिए। मेहमान अदाकारों को भागने नहीं देंगे। पहले कहा, वो चाहे तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। बाद में अपनी जीत का क्रेडिट भी इमरान खान को दे दिया। बड़ा दावा करके परवेज खटक का यू टर्न। ट्विटर पर वजाहत दी कि अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस और उनके एहसानमंद हैं। अपनी जद्दोजहद और इमरान खान की मुआवनत की वजह से हल्के में कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज नौशहरा में खिताब के दौरान परवेज खटक ने कहा था कि वो जिसका साथ देते हैं आसमान पर पहुंच जाता है, जिसका साथ छोड़े सिफर हो जाता है।
PDM نے 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, हुकूमत कायम है, मगर PDM खुद डेड हो गई। रहनुमा PTI फर्रुख हबीब का तंजियावार, कहा हलवा खाने वाले पिज्जा नहीं खा सकते। मौलाना फजल रहमान ने यू टर्न लेकर सेनेट इलेक्शन का हिस्सा बनने का ऐलान किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गलत अंदाज में पेश किया गया। ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट न किया तो वाज़ेह हो जाएगा कि ये लोग मंडियां लगाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं को अवामी मसाइल पर फोकस करना होगा। मनफी सियासत के बजाय सबको मुल्क और अवाम के मफाद का सोचना चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि कौमी इदारे पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है और इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जो भी कोई गुफ्तगू करे उन्हें कौमी इदारों की खिदमात को सराहना चाहिए। कोरोना के नुक्ता आगाज का पता लगाने वाली WHO टीम का वबा के मुबैना मरकज चीन शहर वुहान की मार्केट का दौरा। जर्मनी में कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतासरा ममालिक के शहरियों के आने पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी किस्म के कोरोना वायरस से एक शख्स मुतासर। पर्थ समेत मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन का लॉकडाउन नाफिज। दुबई में आज से चीन की वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जाएगी। बरतानिया में एक दिन में मजीद 1200 अफराद कोरोना से हलाक। अमरीका में कोरोना अमवात 4.5 लाख से बढ़ गई। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज मई की डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में रहेंगी। नेटो हुकाम का कहना है कि इनखला की शराइत पूरी नहीं हुई। अमरीका की नई इंतजामिया अफगान पॉलिसी में रद्दोबदल के साथ अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकलने पर भी गौर करेगी। ट्रंप इंतजामिया और तालिबान मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला रवा बरस मई तक मुकम्मल होना है। मारूफ अदाकारा और अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिल्मी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। वजीर आजम इमरान खान का अदाकारा नीलो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर के बाद मौसम में बेहतरी। दर्जा हरारत अब भी नुक्ताए इंजमात से नीचे। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, कल्लात में -3 डिग्री तक आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, जबकि लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम रावलपिंडी पहुंच गई। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। Shelby's corner is swung into Wilson, who has thrown as a sparing dive from Jordan Pickford. इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को एक गोल से हराकर टेबल पर पोजीशन बेहतर कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का मैच बगैर गोल के बराबर रहा। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड को लेवेंटे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। Asensio with 2 touches gets it into the area. That's a superb finish from Marco Asensio. It's a glorious finish. I think that's where Roger got a ticking off when Courtois made it. Saying that we needed to see them move up another gear. सयाहत के फरोग, अमन भाईचारे का प्रचार करने वाली कराची तक गवादत बाइक, कार और जीप रैली का इख्तिताम। शुरका की आज वापस कराची रवानगी। 650 किलोमीटर फासला तय करने वाले शुरका का रास्तों में मकामी अफराद से मिलना जुलना। क्रिकेट, फुटबॉल मैच खेले और मेरीन ड्राइव पर पाकिस्तान रैली निकाली।
मॉस्को में होने वाले स्नो बोर्ड वर्ल्ड कप के मेंस इवेंट्स में रूस ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि खवातीन के इवेंट्स में ऑस्ट्रिया की डैनियला सबसे आगे रही। टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर 2 दिन में 25 लाख से ज्यादा बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।